Good morning everyone present here. Welcome to this event organized by Class 10th. This is a short film which we have made collecting all the memories of our school, teachers and how the students prepare of the Teachers' Day. So let's go ahead and watch those pictures and live through those moments once again.
all those beautiful pictures. We all know how important a teacher is in our life, and without them, it's very difficult to succeed in our life. So here comes Sir Augustine with the same message of importance of teacher in our life. So let's hear it from him. Good morning to one and all present here. Wish you all a very happy Teachers' Day. Do you know, once my daughter asked me, Papa endina teacher ayadu? Means, why did you become a teacher? I told her, I did not become a teacher, I happen to be a teacher. I am sure if the same question is asked to many of us, we also may have the same answer. We happen to be here in this auditorium. But I would say no. It was not by chance that we become teachers. It was a choice. The one who created us without our choice selected us for this noble cause, of course, without our choice. That's why we say teaching is the noblest of all professions. Every child is a masterpiece in making. So, let's be like the great Michelangelos to chisel out the best out of them. It is not what we teach that matters. What matters is what we are. Because children often know better than what we teach them. So what matters is what we are. Let this noble day make us be more responsible to our call, because we have been called to build a better generation for God and country. Wish you all a very happy Teachers' Day once again. Thank you. The words from Sir Augustine was so true. Meanwhile, when I was surfing internet, I thought to check why is actually Teachers' Day celebrated in our country. A thought just clinged my mind that why not to go and ask a teacher about it. So let's go to one of the most experienced teacher of our school, Miss Meena Rani, to ask why is actually Teachers' Day celebrated in our country. So let's hear it from her. आज शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर सारे शिक्षकों का अभिवादन और अनंत शुभकामनाएं। भारतीय परंपरा में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका अन्यतम स्थान रहा है। इसीलिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी उच्चतर स्थान दिया गया है। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले गुरु की वंदना होनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमें गोविंद के विषय में बतलाते हैं। लगभग यही स्वर तुलसीदास का है, जो कहते हैं बंदहु गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। इसी परंपरा को हम लोगों ने आषाढ़ मास की पूर्णिमा को देखा है, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में इसी गुरु की महत्ता को स्थापित करने के लिए हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जहाँ हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में कैसे शुरू किया गया, इसके पीछे एक घटना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके जन्म दिवस को खूब धूमधाम से मनाने की घोषणा कर दी और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। देश विदेश के अनेक विद्वानों को निमंत्रण भी दिया गया। सादगी पसंद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े धर्म संकट में पड़े, क्योंकि न तो वे नेहरू की बात का खंडन कर सकते थे और न ही उन्हें वह ताम झाम धूमधाम पसंद थी अपने जन्म दिवस के रूप में। इसलिए उन्होंने रास्ता निकाला और कहा कि मेरे जन्म दिवस को अच्छा है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। वैसे तो राधा कृष्णन के जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरक प्रसंग हैं, लेकिन एक प्रसंग है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब 1949 में वे रूस में भारत के राजदूत बनकर गए, उस समय रूस में स्टालिन का शासन था। वह स्टालिन जो घोर तानाशाह था, जो हिंसा प्रेमी था। संयोग से एक बार दोनों की मुलाकात हुई और जिस सहज स्निग्ध मुस्कान के साथ सर्वपल्ली ने स्टालिन से हाथ मिलाया,
स्टालिन को मानना पड़ा कि उस स्पर्श में एक अजीब तरह की अनुभूति थी, वह अनुभूति जो अनिर्वचनीय है। इसके साथ ही उन्होंने जिस स्टालिन के सामने लोग बोलने में डरते थे, उस स्टालिन को उन्होंने भारत के सम्राट अशोक की घटना का उदाहरण दिया और कहा कि हमारे यहाँ भी एक बहुत हिंसक राजा हुआ करता था, एक हिंसक सम्राट था जिसने खून की नदियाँ बहाई, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जिसका हृदय परिवर्तन हो गया। और इस तरह उन्होंने हिंसाग्रस्त रूस को अहिंसा का मार्ग दिखलाया। वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री बनाना बड़ा श्रमसाध्य काम है, विशेषकर वैसे लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल नहीं है। तो हमारे विद्यालय के जिन छात्रों ने ये वृत्तचित्र तैयार किया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। इसमें ऋषिक, वैभव और मयंक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। So, now when we are done with almost all the things, let's go behind the scenes to check out what actually students do for this auspicious moment. Hey guys! Meet the crew. This is Mayank Raj. This is Rohan Kumar. This is Rishik Kumar. This is Vaibhav Agrawal. We hope you all enjoyed watching our video.